plan your future 3-4 months, then so that you will be able to get the maximum from our side or your side. You can do. How many participants joined? I think 34. 24. What was the earlier class? English, I think, no? Is it audible to you? Am I audible? I'm getting only. Yes, sir. Shivam, are you Yes, there? sir. Yes, Hello. sir. I'm just checking the audio. I'm getting. Okay, sir. शिवम बोलो तो कुछ. Hello, are you there? Yes, sir. Sir, am I audible? Oh, Yes, sir. now you are. Yes, sir, you are audible. Okay, okay. Anyway, I hope you all have done well and eagerly waiting for your marks. But I will tell you, you have done your job, you have done your part, and not to worry about the output. Output will be always good. If your process is good, product will be there, the best, whatever you have put your effort. It's not going to be all the time. We should keep on in patience that what will be the marks or result. If any subject you get less mark also, it is again a learning for you. Or if you are getting good marks, it is again giving you a clarity that you have acquired whatever things it is digested. So it's not to worry about the product. If your sincere efforts are there during the process, and I believe it will never happen that the product will come something wrong or something which is not expected. So don't worry at all. I think by 15th we are going to give your report cards, and meanwhile the class 10 form fill up is going to start. So I think Sanjay sir has sent one LOC in PDF to you all. You need to compare the name, father's name, mother's name, date of birth. Based on that, you have to give all the in the Google form confirmation. So once everything is we get confirmed, we will send CBSE your list of candidate LOC, what we are calling it. Then we will send the form fill up date. So in the month of October, your class form fill up will also going to start. And once form fill up is over, means at least from our side, you will be taken care by CBSE for that. So it is very speedily going, things are going. So just I thought I may get the future the chance to interact with you unofficially, not as an academic teacher or math teacher. So I told Tival sir and we are both the class teachers, give me half an hour to 1 hour time so that I can interact both the sections. And when it is, as you know, it is very crucial time, not crucial, very important time for us to go with proper strategy, proper plan. And the most important thing is unless and until we are clear about our goal or aim, we will not get the required energy to put in our actions. So that is the reason I have asked it. I hope one maximum have joined till now. You will see that how many students have joined. Sir, गोटे मीटिंग रे अच्छी करी आधा घंटा पर सर सर गोटे मीटिंग रे अच्छे आधा घंटा पर करी हेलो so how many 48 okay fine. So dear students, as usual, before we start anything, I used to go with some personal experience and some stories or some events which really helps us to give the things in our mind very clearly to reach. So the thing is like that. एक दिन क्या हुआ? Person, क्योंकि again a imaginary story है, but very important for us to learn from the story. He died, and after that, usually we believe that if we have done good job or good deeds in our life, we used to go to heaven. Hindu heaven, heaven our स्वर्ग होता है तो वहाँ खाना पीना
और क्या बोलते हैं मेनका और वर्सी, ये सब का दर्शन होता है। और क्रिश्चियन का होने से एंजल्स व्हाइट गाउन पहन के आपको वेलकम करते हैं। मुस्लिम का होने से पकवान के साथ साथ राजा महाराजा की तरह जो आलमपना का स्टाइल में खीरा वगैरह करके वहाँ बहुत मैंने ऐसा बताया जाता है कि वहाँ बहुत सुपर ये है, आनंद से भरा हुआ भी रहता है। तो उसी कुछ ये भी एक्सपेक्ट किया। तो द मोमेंट ही एंटर द गेट ऑफ द हेवन, एक एंजल आई बोली, सर लेट्स लव बिकॉज ऑफ योर गुड डीड्स यू आर वेलकम इन आवर हेवन, लेट्स गो आई विल शो यू अवर प्लेस। तो जा रहा था, तो जाते समय देखा राइट साइड में बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे 3। तो पूछा व्हाट आर दे, तो बोला दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहाँ पे कि स्वर्ग का जितने भी प्रशासन का काम है ये सब चलते रहता है। ये आदमी तो पूछता है कि मे आई एबल टू विजिट दैट प्लेस, या ऑफकोर्स, क्योंकि आप तो यहीं के रहने वाले हो जाओगे, चलिए हम आपको दिखा दें। तो जैसे ही एंजल उसको लेके जाती है तो पहला बिल्डिंग देखिए, फुल ऑफ क्राउड, लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग, लॉट ऑफ डिवाइन पीपल मीन्स स्वर्ग लोग उसमें काम कर रहे हैं, भरा हुआ हॉल पूरा है। तो ये पूछता है कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज द रिसीविंग डिपार्टमेंट, whatever request and all comes from the earth we used to receive, and उसको हम लोग करते हैं, एक्सेप्ट करके देख के उसको जांच के सब किया जाता है। तो ये सब आने वाला रिसीविंग डिपार्टमेंट है जो भी देखता है। बहुत क्राउड है। सेकंड में जाता है, सेकंड बिल्डिंग में भी बड़ा हॉल रहता है, लेकिन उतने लोग नहीं रहते जितने पहले बिल्डिंग में थे। यहाँ पे रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका 50% लोग, अगर वहाँ 1000 थे तो 500 लोग काम कर रहे थे। तो व्हाट इज दिस, तो ये डिस्पैच सेक्शन, जो भी रिक्वेस्ट आता है धरती से कि मुझे भगवान पास करा दो, मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे घर दिला दो, मुझे पत्नी दिला दो, दिला दो, लॉट ऑफ थिंग्स पीपल यूज्ड टू ऑलवेज whenever they come in front of God, they keep on giving their requested to the God, और अपना फाइल सब को लगाते हैं, मैं ये कर दूंगा, तो 4 दिन पास रह जाऊंगा, नरियल फोड़ दूंगा, और साथ में कुछ प्रलोभन भी भगवान को देते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स हैपन इन द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होता है। तो सब रिसीव हो गया। अब बेस्ड ऑन देयर जेन्युइननेस ऑफ देयर रिक्वेस्ट एंड ऑल, सेकंड बिल्डिंग में होता है डिस्पैच सेक्शन। सपोज मैं बहुत जेन्युइनली मान रहा हूँ कुछ कि मेरा तबीयत है या फिर कुछ ऐसा कि बेटी के लिए कुछ भी, उनको लगता है तो वहाँ से सैंक्शन होकर डिस्पैच होकर फिर आता है ओके ग्रांट है। अब बहुत सारे एप्लीकेशंस है, उसमें सभी का होना जरूरी नहीं है, तो वो तो रिसीविंग में हो गया। डिस्पैच में केवल उन्हीं का होता है बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट और जेन्युइनिटी ऑफ द रिक्वेस्ट और प्रेयर। गॉड यूज्ड टू अच्छा ओके ये सब फाइल को ओके करके भेज दो। तो सेकंड में थोड़ा 50% में कम। देन उसके बाद और एक हॉल जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। This is also the same big dimension hall, but only 2 people are working. तो ये आदमी को फिर ताजुब होता है, पहले में 1000 थे, दूसरे में 500, यहाँ केवल 2 जन। फिर ये एंजल को पूछता है व्हाट इज दिस हियर ओनली 2 सच ए बिग हॉल, ये क्या है? तो बोलता है दिस इज एक्नॉलेजमेंट सेक्शन। दिस एक्नॉलेजमेंट सेक्शन जो धरती वालों को मिल जाता है, जो भी चीज जो मैं प्रे किया या जो भी मांगा भगवान से मिल जाने के बाद देखा जाता है थैंक यू गॉड, आई हैव रिसीव्ड योर ब्लेसिंग, I have received whatever I have prayed and I'm really grateful. I will try my best. Something जो हम लोग भेजते हैं कि मुझे मिल गया है, उसको करके एक तो लेटर भेजा जाता है, उसको होता है एक्नॉलेजमेंट लेटर कि मैंने स्वीकार कर लिया, I have got that thing. बट यहाँ पे देखा जाए तो खाली 2 है। तो व्हाट डज इट मीन, से क्या पता चल रहा है कि पीपल आर रिसीविंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड, लॉट ऑफ ग्रांट्स फ्रॉम द गॉड, बट वी आर वेरी मेजर इन ऑर्डर टू सेंड द रिप्लाई एज एक्सेप्टेंस। ऐसे नहीं, जब हमको मिल जाता है उसके बाद हम भूल जाते हैं उनको थैंक्स बोलने। अब ये आदमी बोलता है तो एंजल पे सब बताती है देखिए ये हालत है, उसको थोड़ा दुख भी लगता है। फिर आदमी बोलता है सच बात है, ऐसा क्या भगवान कर दिया धरती में जो कि सब तो इनको धन्यवाद भी उतनी नंबर्स में देंगे। तो एंजल को पूछता है आई रियली, पहले एंजल बोलते देखिए ये हाल है, लोगों को मिलता है ब्लेसिंग मगर आपस में कोई उसका एक्सपीरियंस भी नहीं देता है भगवान को। तो बोलता है व्हाई वी विल शो आवर ग्रेटिट्यूड टू गॉड, ये आदमी बोलता है इज देयर एनीथिंग ग्रेट ही इज डूइंग देयर। तो ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो एंजल उसको बोलते हैं सच भी बात है, तुम लोगों के भी दिमाग में आता होगा क्या बड़ा कर एक इंसान का जन्म दिया, स्कूल भेज रहा, स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, ये क्या ऐसा चीज कर दिया जो कि हम उनको सुबह उठ के धन्यवाद
नाउ एंजल से काइंडली नोट डाउन। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो नोट कीजिए ताकि आपको सच्चाई पता चलेगा व्हाई वी शुड थैंक गॉड। देन द एंजल स्टार्टेड, देन एंजल स्टार्टेड हर narration that कि देखिए, इफ यू आर हैविंग 4 times मील ए डे, अगर आपको दिन में 4 बार खाना मिलता है बगैर कोई तकलीफ के, तो यू आर ऑन द टॉप 75%, अबव द 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है, अगर आपको 4 बेला का खाना मिलता, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को कुछ खाने के लिए, रात को बगैर कोई तकलीफ के, मैंने भूखा बगैर हुए, तो आप धरती के 75% लोगों के ऊपर, यानी देर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड who are starving, who are not able to get the 4 times of meal per day. तो एटलीस्ट मैं जानता हूँ, हम सब, मैं जिनको एड्रेस कर रहा हूँ, हम सब उस 75% के ऊपर है, यानी कि टॉप 25% में हम आते हैं। So this is a very good reason to extend our thanks to God. Not only here that angel stop, यहीं पे खत्म नहीं किया, ये तो एक बहुत बड़ा कारण सबको मिल गया। Then angel move forward, बोला if you are getting this 4 times meal as well as proper clothing, if you are able to put on your body कपड़े, जो मिनिमम लग्जरी या अपने आप को जो डिफेंस करने के लिए हमको लगता है, एक कपड़े अच्छे से, क्योंकि आप देखोगे वर्ल्ड में सोमालिया हुआ, ब्राजील हुआ, अफ्रीकन कंट्री हुआ, आप डोंट कंपेयर विद द अमेरिका। अमेरिका इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज वहाँ पे एक साथ सभी लोग आए, बाहर के लोग, एक उपनिवेश था, वेयर ऑल दे हैव जनरेटेड विद नियर बाय आइलैंड से करके वो समृद्ध हो गया, देयर जीडीपी समथिंग। बट वर्ल्ड में केवल अमेरिका ही नहीं, वर्ल्ड में सोमालिया है, अफ्रीकन कंट्री है, ब्राजील है, वियतनाम है, देर आर ऑल अरेबियन कंट्रीज के आसपास जितने हैं। तो इफ यू विल कंपेयर है तो आपको पता चल रहा है 75%, इवन इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, देयर आल्सो अराउंड 50% पीपल आर नॉट गेटिंग फुल टाइम मील, 50% हियर इन आवर इंडिया। तो दैट मीन्स अगर पूरा वर्ल्ड का निकाला जाए तो अगर कपड़े भी आप अपने शौक से पहन पा रहे हो, जो कि हम सब कर पा रहे हैं, कभी कभी हम जब भी कपड़े लेते हैं तो अपने इच्छा से ले पाते हैं, तो ही कम्स अंडर 84%, above the 84% of the total population. यानी कि there are 84% of the population of the world, they are not even able to wear the proper clothing along with the food. खाना मिल जाने के बाद तो गांव वाले कपड़े के लिए देखेंगे, अभी भी आप देखोगे गांव में जाओगे, दे आर नॉट हैविंग अ फुल ड्रेस, शरीर को ढकने के लिए पूरा कपड़े भी नहीं है, ना बच्चों में है ना बड़ों में है। इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग, बट यू आर वेरी लकी, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि आप वो 84% के ऊपर, यानी कि टॉप 16% में आप आते हैं। देन यहीं पे रुकी नहीं, इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड एंड सेड कि इफ यू आर एबल टू गेट फूड, क्लॉथ एज वेल एज ए शेल्टर ऑफ होम, अपने खुद का घर या क्वार्टर, कंपनी का क्वार्टर अगर आपका है, तो यू आर अंडर 92% एंड अबव। वर्ल्ड में 8% लोगों के पास ही घर है, बाकी लोग के पास या तो किसी के भाड़े में रहते हैं, रेंटेड हाउस में, कोई कहीं पे, कोई झोपड़ में, कोई पैसा में रहते हैं। तो यू आर द 92 एंड अबव में, 92 आपके नीचे। तो आई थिंक दिस क्राइटेरिया ऑल्सो एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ, हम सबको जो है इसमें भी, यानी कि हम करते करते आगे टॉप 8%, हम वर्ल्ड टॉप 8% के कैटेगरी में है। दैट इज a great blessing of God. Still we are not thankful to God, we have not sent any acknowledgement to God. Now further angel बोलती है, सर आपके पास कपड़ा है, घर है और खाने को मिल रहा है, तो आप तो 92% के अबव है। साथ में अगर आपके पास कोई वाहन है, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, इस तरह का जो खुद का गाड़ी हो, मैंने किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड नहीं हो कि आपका घर में गाड़ी है, तो यू आर इन द 96% के अबव में होते हैं। मैं टॉप 4% में आप आते हैं। ओनली 4% पीपल आर हैविंग देयर ओन कार, ओन बाइक। अगेन इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। देखो यहाँ रुक नहीं रहा, और मुझे लगता है आई डोंट थिंक कोई हम लोग के ग्रुप में जो मुझे सुन रहे हैं आर एनीवन, मैं अभी जो 3 क्राइटेरिया बताया, 96 के अंदर है कोई है जिसके घर में गाड़ी नहीं है, बैलगाड़ी या फिर कुछ छोटा मोटा कुछ भी नहीं है, बाइक भी नहीं है, कार भी नहीं है, इज देयर एनीवन? शायद बोलना नहीं चाहते हो, ठीक है मैं उल्टा पूछता हूँ, सभी के घर में गाड़ी है?
Yes, Yes, sir. sir. तो Yes. अब मेरे को बताना नहीं पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो. तो यू ऑल आर इन द टॉप 4%. इसके बाद इफ यू आर गेटिंग ए प्रॉपर स्कूलिंग, दिस ऑल 4 के साथ स्कूलिंग, साथ में अपना अगर खुद का सिस्टम, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन अगर है, यू आर इन द 99% के ऊपर में, यू आर इन द टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड. मुझे लगता है ये कंडीशन भी अभी भी किसी के पास वो पुराना फोन नहीं. लगभग सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन है, खुद का है और कभी पापा का यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों के पास तो खुद का पर्सनल पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर होगा या लैपटॉप. तो ये भी फुलफिल. एंड नाउ यू सी यू आर इन द टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में, धरती में जितने इंसान है उसमें से आप सर्वश्रेष्ठ 1% जो होता है, टॉप 1%, यू आर देयर स्टैंडिंग नाउ. तो डोंट यू वांट मोर देन दिस? क्या तुम अंबानी बन जाओगे तभी जाके भगवान को धन्यवाद करोगे? जब मर्सिडीज बेंज और ऑडी आ जाएगा तभी करोगे? वो लोग तो 0.001% में. तो आप तो ऑलरेडी 1% में हो, टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. यू आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज. सो इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग. इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग. एक तो नहीं. स्टिल वी आर कंप्लेनिंग अबाउट आवर मिसेस. फिर भी हम शिकायत करते हैं, अरे उसके पास ऑडी है, उसके पास फलाना मारुति ब्रेजा है, वो क्रेटा है, ये है, मेरे पास मारुति ऑल्टो है. व्हेन वी विल बी हैप्पी? आउटसाइड एक्वायर कर करके कितना दिन हमने निकल गया. अंदर सेटिस्फेक्शन लाने के लिए इतने सारे जो कारण बताया हूँ, कि क्या तुमको नहीं लगता आज ही एक लेटर लिख के डाल दो, धन्यवाद भगवान तुमने इतना कुछ किया, मुझे पता नहीं. मैं 99% लोग मेरे से नीचे हैं, इतना श्रेष्ठ बनाने के बाद भी मैं रो रहा हूँ. In a good public school with a good parents, with a good teachers, lot of great blessings are with me. Still in the morning I am not having a joyful moment to start my day. ऐसा लगता है कुछ खो के उठ रहा हूँ. नहीं, आज से मैं ये नहीं करूँगा. आज मुझे क्लैरिटी हो गया कि मैं किस क्राइटेरिया में या किस रेंज में आता हूँ या किस कैटेगरी में आ रहा हूँ विश्व का कंपैरिजन. So I hope students you can understand that how much blessed we are because of the parents, because of the teacher, and the Almighty Supreme, whoever you think that you are God. So it's a great moment for us to show our gratitude to this world and the universe that they have made us in the top 1%. Still, if you go to the street, you will find that 75% people below 75%, below 90%, people are there. And everywhere in the village, in the roadside, in the bus stand, you will find the people are starving. They are not even sure that evening meal they will get. So at least we are 100% assured that not only today's meal and the next life also, the future days also, we can be taken care by our parents, the food and the cloth and the other facilities. घर भी सबके पास होगा, गाड़ी भी सबके पास होगा. अब इंतजार मत करो अंबानी या टाटा बन जाने के बाद ही भगवान को लिखो या भगवान को अपना संदेश भेजो करने का. ऐसा नहीं होता. ऑलरेडी आप 99% आपके नीचे होने के बाद भी अगर आप कृतज्ञ नहीं हो भगवान के प्रति और इस दुनिया के प्रति या पेरेंट्स के प्रति, देन अनदर लाइफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट. इससे बढ़िया जीवन आपको मिलेगा. सो दिस इज द थिंग. तो जब ये आदमी समझ गया कि यस, द ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग अ ब्लंडर बाय नॉट एक्सेप्टिंग द ब्लेसिंग्स. ऑलवेज दे आर क्राइंग फॉर द ब्लेसिंग्स. So my dear students, from today onwards, at least you stop crying. Try to start creating. Instead of crying, try to convert your things in creating. You will enjoy. Not only you will enjoy, you will give the opportunity to the world to enjoy because of your creation. Making the life easy, making the life joyful of others. It's a great contribution to the God. It is a return gift to the God that you have given this. I am returning to you with this. So this is all. This small story has started. Now we come to our topic because many of the students they are asking me, sir, इच्छा तो बहुत होता है, बहुत कुछ करने का डेली एक एक विचार आते हैं और जिंदगी ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, सब रहता है. लेकिन उसमें मैं घुस नहीं पाता, उसमें तो लीन नहीं हो पाता. आई एम नॉट एबल टू गेट इनटू इट एंड इस इच्छा को लक्ष्य नहीं बदल पाता. क्योंकि इच्छा है तो हम सबका है.
उसको इरादा पहले बनाना पड़ता है। इरादा मतलब एकदम डिटरमाइंड होना, उसके बाद लक्ष्य बनाना। तो इच्छाएं आप में हमने हजारों आ रहे हैं कि मैं गाड़ी ले लूंगा, घर ले लूंगा, ऑफिसर बन जाऊंगा, या बहुत सारे कंपनी खोल लूंगा। इट इज वेरी कॉमन। मुझे मेरे अंदर भी बचपन में आते थे पढ़ाई के समय, तुम्हारे अंदर। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इच्छा को लक्ष्य में कैसे बदला, हाउ यू कैन कन्वर्ट योर इंटरेस्ट इनटू योर एम, and that will be a burning aim, and you will have a focus, major focus towards your goal. So for that you need to remember 4Ds. This is the 4D sutra or 4D formula. If you keep this remember, then every इच्छा will convert into लक्ष्य. आपका हर इंटरेस्ट, आपका हर पैशन या हर आपका विश will become your goal or your aim. The first is, for that is required D for, the first is आपका डेडलाइन। डेडलाइन मतलब होता है समय सीमा। संजय सर भी मेरे साथ है, अगर कोई स्पेलिंग गलत होगा हिंदी में देख लीजिएगा। समय सीमा ठीक है सर? ओके। तो डेडलाइन इज समय सीमा। आप सब जानते हो बचपन से, आप ही नहीं, आपके मम्मी पापा भी गा रहे होंगे, दादाजी भी गाते थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन आज तक ना मम्मी पापा का आया, ना दादा लोग आया, ना हम लोग आया। वो कोई एक डेडलाइन नहीं है, एक दिन। ठीक है, जैसा आप लोगों को लगता है भाई कल मैच कर लूंगा, कल मैच कर लूंगा नहीं, कल 10 बजे तक मैच कर लूंगा। यू नीड टू कम विथ ए डेडलाइन। जब आपका इच्छा डेडलाइन के साथ जुड़ा रहेगा, आपका लक्ष्य बनना शुरू हो जाएगा। अभी आपके पास इच्छा तो है 3 महीना में बहुत अच्छा करने का, लेकिन डेडलाइन आपके पास मैं दे रहा हूं, आपको भी पता है कि आपके पास 3 से 4 महीने हैं। आज हो गया सितंबर लास्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 20-22 को आपका एग्जाम 17 तारीख से एग्जाम शुरू होता है। तो लास्ट मंथ तो छोड़ दो जनवरी, क्योंकि जनवरी में टोटल आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर पे ही ध्यान देना रहता है, कैप्सूल पढ़ाई करना रहता है। आपके पास बचा 3 महीना, जिसमें मेरे और हमारे सभी टीचर के पास डेडलाइन है नवंबर 30 तक आपका कोर्स कंप्लीट करना। आपके लिए भी डेडलाइन है ये 3 महीना में कम से कम कोर्स का 3 या 4 बार रिवाइज करें। ठीक है, तो इस डेडलाइन को ऐसा नहीं कि 3 महीना है, फिर देखते देखते 2 महीना है, पता चलेगा तो वही हो जाएगा हम होंगे कामयाब एक दिन। ना एक दिन वो दादा परदादा का आया, ना पापा का आया, ना मेरा आया। वो एक दिन कब है? कल खत्म करो, परसों खत्म करो। तो जब आपका कोई भी इच्छा समय सीमा के साथ जुड़ जाता है, वहां से वो लक्ष्य बनना है। तो फर्स्ट डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट ब्रिंग योर ऑल विशेस विद ए डेडलाइन कि इस हफ्ते ये कर जाऊंगा, कल दोपहर तक चीज कंप्लीट हो जाएगी। तब आपके अंदर एक आग लगेगा, एक चिंगारी लगेगा, एक फायर रहेगा कि मैं अपने कमिटमेंट से कैसे हट रहा हूँ। तो बोलता है ना, सलमान खान का एक वर्ड है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप का भी नहीं चलता। तो आपको भी वो जो सब जज्बात रखना चाहिए, जज्बा रखना चाहिए कि एक बार मैं बोल दिया, टालना नहीं है। डेडलाइन मतलब डेडलाइन। ठीक है, तो ये डेडलाइन को, समय सीमा को, जो भी आप रखे हो उसको करिए। कीप तो कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, हफ्ते में कर लूंगा, महीने कर लूंगा, पर्टिकुलर डेट एंड टाइम डालूंगा। Then the fire will ignite within you, and it will not allow you to sleep. It will not allow you to distract. It will not allow you to pass your time for any unwanted things. ठीक है, तो आपका जो भी ये है इच्छा है, रखिए, हजारों है या 5 है, 50 है, but keep it with the deadline. Clear? And the second thing is direction. डायरेक्शन ये है दिशा। तो थोड़ा सा हिंदी का देखते रहिएगा, साव में मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ। ठीक है, दिशा। दिशा का मतलब डायरेक्शन, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या है। जैसे एक आदमी गया रेलवे स्टेशन में, भागते भागते रेलवे टिकट काउंटर में, सर टिकट दीजिए, टिकट दीजिए बोले, तो वो टिकट क्या करेगा काउंटर? आप ना भुवनेश्वर बोल रहे हो, ना कलकत्ता बोल रहे हो, ना मद्रास बोल रहे हो, क्या करेगा? प्लेटफॉर्म टिकट दीजिए। टिकट ही तो बैठे रहो भैया, इसी प्लेटफॉर्म में अपना समय बिता लो, तो ही विल हैंड ओवर यू ए प्लेटफॉर्म टिकट। आप निकल तो गए, लेकिन जाना कहाँ है आपको पता नहीं, दिशा नहीं, तो देयर इज नो यूज ऑफ योर
wish और इच्छा that it is going to bring some fruit. जब तक आपका इच्छा के साथ दिशा नहीं जुड़ा रहेगा वो भी लक्ष्य नहीं बनता। आपको कोई भी जैसा इंजीनियरिंग, मेडिकल, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग, cinematography, or there are thousands of options are there for to involve yourself in this world. It is not that only 4 or 5. One day I will tell you after 12 क्या है. So there are many diplomas are there, many professional courses are there. Yes, except leaving this all traditional courses of math, science, commerce. There are professional courses. So it is not that कि कोई अनवी या शिवम या फिर मनस्विता का कोई एग्जाम कर रहा तो हम भी भीड़ के सामने के जैसा सोचे। आपके अंदर अगर कुछ अलग सोचने का शक्ति अगर भगवान दिया, उस फील्ड में अगर आप पूरा शक्ति लगाओगे उसमें भी आप सफल और कामयाब हो। ये जो सुलभ शौचालय का जो थॉट आया था, तो क्या नाम होगा, जो बेटी क्या है पाठक, जो पूरा इंडिया भर में किया, बिलियनर है, राउरकेला NIT से पास आउट करके किए थे। उसके बाद आए के बच्चों से मिलकर एक प्लान किए थे, सब पूछा कि क्या शौचालय करके क्या बने। नाउ द वर्ल्ड बिगेस्ट चाइन ऑफ टॉयलेट्स एंड इज द रिचेस्ट। तो ऐसा नहीं कि वो छोटा है ये बड़ा है, दिल लगाकर पूरा दिशा बनाकर उसके साथ डेडलाइन देके करोगे, आप लक्ष्य को सिद्ध भी करोगे, आप सफल ही नहीं रहोगे, साथ में आपको समर्पित भी करोगे दुनिया। तो दिशा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि क्या है, टिकट मांगे तो प्लेटफॉर्म टिकट, क्लियर रहो जो मुझे करना है, आर्मी में जाना है कि इंजीनियरिंग में जाना है कि सिनेमा में जाना है, एडवर्टाइजमेंट में, किसी में भी जाना है, उसी की तरफ काम करें। योर डायरेक्शन हैज टू बी क्लियर फ्रॉम नाउ कि अभी तो ज्यादातर आपका दिशा क्या है। आपका दिशा होगा इमीडिएटली जो 10th तक का जो अच्छे रिजल्ट लाकर अपने लिए सभी दरवाजे खुला रहे, ताकि जो है एनीवेयर इफ आई वांट टू गो डोर विल बी ओपन। ये नहीं कि आपका इतना परसेंट कम है आपको इसमें अलाउ नहीं होगा, या आपका इतना हो जाता तो इसमें हो जाता। तो दैट अफसोस लाने वाला काम आपको नहीं आना चाहिए। जाके आपके लिए समय सीमा और दिशा अभी आपका एकेडमिक से रिलेटेड दिशा, जैसा आप पढ़ने बैठे 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 बीच में देख रहे टीवी में क्या आ रहा है, भाई भी क्या बात कर रहा है, मम्मी क्या बात कर, दिशा भटकना है। हाँ, किसी का फोन आ गया आपके साथ, आधा घंटा से 1 घंटा गप्पे मार लिया, अगेन यू आर डिस्ट्रैक्टिंग, योर डायरेक्शन यूर मिसिंग। अगर आप हाईवे में हो तो हाईवे से डायरेक्ट दिल्ली जाना है, या अगर मैं को यहाँ से निकला हूँ रिमूली होके भुवनेश्वर, तो घूम रहे फिर देश में कौन सा गांव में क्या बाजा बज रहा है, कौन सा घर में कौन सा नुक्कड़ नाटक हो रहा है और कहाँ पे कौन सा तमाशा हो रहा है, देखने में क्यों घुसूंगा। माई स्टेट फोकस इज हाउ टू रीच भुवनेश्वर। यही कि कहीं पे ढोल नगाड़े हो रहा है तो गाड़ी रोक के और नाच के फिर आऊंगा। मेरा जो डेडलाइन है, मेरा जो डायरेक्शन है, सब हुआ तो मेरा लक्ष्य तो अपने आप मिस होगा। तो जब मेरा क्लियर है कि मेरा गोल क्या है, तो मेरा दिशा को पूरा पूरे से पकड़ आएंगे, बीच में आएंगे। तो आप भी जाते रहोगे तो गली मोहल्ले में देखते रहोगे, आप जब कार में जाते रहोगे तो जुलूस निकल रहा होगा, कहीं पे बारात निकल रहा होगा, कहीं पे बाजा बज रहा होगा, तो क्या आप रुक जाते हो? तो देखते हो, आनंद करते हो, पापा गाड़ी को रोक के वहां पे अपना दिशा भटकते हैं। तो हाईवे में जब जा रहे हो तो फोकस रखो अपना डेस्टिनेशन, ठीक है। Don't unnecessarily distract with this puppy, then other games and all the gossips, smartphone, your WhatsApp, Facebook. Keep it. एक विंडो टाइम रखो, शाम को आधा घंटा फॉर सोशल रिलेशनशिप, दोस्तों से हो या बड़ों से हो, दादा दादी से, ये आधा घंटा बात करूंगा, फिर वापस अपने दिशा में गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आपका हो गया डेडलाइन, देन हो गया डायरेक्शन, एंड द थर्ड डी इज डेडिकेशन। ये है निष्ठा। अगर मैं सही हूँ तो उस पर ठीक है सर। हाँ, निष्ठा। निष्ठा का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट। जैसा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उनको पता था कि गांधी जी लड़ रहे हैं आजादी के लिए। हाँ, 90,000 ब्रिटिश सैनिक के सामने करोड़ों भारतवासी गुलाम बन के बैठे, क्योंकि उसके अंदर निष्ठा नहीं था। निष्ठा मतलब बर्निंग डिजायर या पूरा समर्पण भाव नहीं था। लेकिन भगत सिंह, जो जिंदगी का सबसे बड़ा समर्पण होता है, जीवन, लाइफ को दे चुका था माँ भारती को। So that is called dedication, burning desire to complete the work और get the goal. Even इसमें अपना जान भी खपाना पड़े, मतलब पूरा शरीर, समय,
जो भी प्लेजर्स लग्जरीज भी खपाना पड़े खपा दो, लेकिन इसको हासिल करो। इसको बोलते हैं निष्ठा, समर्पण, संपूर्ण भाव से उसमें इन्वॉल्व होना, तो निष्ठा बोलते हैं। जो भगत सिंह में आप देखोगे, महात्मा गांधी में देखोगे, जितने भी सफल इवन अब्दुल कलाम में देखोगे, ये क्या है, इनका काम है कि कोई चीज को अगर वो लोग हासिल करना चाहते हैं तो दिन रात 24 घंटा उस पर पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। दे एनक्लोज इन सच ए मैनर दैट दे फॉरगेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, and once you focus in that manner to your goal, you are going to get that goal. God has to come down to help you. उसको उतर के आना पड़ेगा जो सुप्रीम क्रिएटर है, तो बोलेगा भाई ऐसा, और करके दिखाए। गरीब से गरीब बच्चे ने उच्चतम सफलता पाया, साधारण से साधारण लड़का असाधारण काम कर रहा है, तो ये कहाँ से होता है? दशरथ माझी का एग्जाम्पल देखिए, माउंटेन मैन जो, उसका निष्ठा था, डेली जाके छैनी से पत्थर को तोड़ते 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 पता चला 38 किलोमीटर का दूरी को 6 किलोमीटर कर दिया। अगर आप फिल्म देख रहे होंगे तो जरूर, क्योंकि ये सब फिल्म देखने के लिए थोड़ा सा इच्छा चाहिए, नहीं तो आप लोग ज्यादातर दिल तो पागल है या कभी खुशी कभी गम इस टाइप का फिल्म देखते हो, लेकिन अगर कभी मोटिवेशनल फिल्म आता है तो जरूर देखिएगा, वहां आपको पता चलता है डेडिकेशन, किस तरह एक आदमी एक चीज में इन्वॉल्व होकर कैसे उस चीज को हासिल कर सकता है। टोटल विषम परिस्थितियां, एक भी परिस्थिति उसके पक्ष में नहीं रहती है, एक आदमी कर सकता है, जरूरी नहीं हमेशा भीड़ चाहिए उसके लिए। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल। अरुणिमा घोष का है, जिसका एक दोनों पैर कट गया, फिर भी माउंट एवरेस्ट 2 बार 3 बार चढ़ाई की, वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर थी। टेड टॉक्स आप देखो, इंक टॉक्स देखो, अगर यूट्यूब ही देखते हो, अच्छे अच्छे 10 मिनट के अच्छे अच्छे स्पीच आते हैं, जिसमें लॉट ऑफ इंस्पायरिंग स्टोरीज, lot of inspiring examples of life experience comes, then it will give you the confidence that yes, possible. We are top 1% of the world's population and we can achieve anything by seeing at least these underprivileged or unprivileged people. If they can do it, why not we? We are having a very good school, very good teachers, very good parents, very good friends. Then where is the hurdle? So this will give you the निष्ठा, मतलब दिल से समर्पित होकर रहना। आई होप यू हैव क्लियर। इस बीच किसी को भी कोई डाउट होता है अनम्यूट करके बोल सकता है। तो पहला हो गया डेडलाइन, समय सीमा, दूसरा हो गया आपका दिशा जो कि डायरेक्शन, तीसरा हो गया निष्ठा जो कि समर्पण या इन्वॉल्वमेंट विथ योर गोल, माने जो भी इच्छा है। ये सब क्या हो रहा है, इच्छा को इंटरेस्ट को एम में बदल रहा है, ठीक है, लक्ष्य सर, और ये है इच्छा सर, ठीक है। हाँ, इच्छा को लक्ष्य में बदलने का सूत्र बता रहा। एंड अगर आपके पास कॉपी पेन है, क्योंकि बहुत जन बहुत कुछ सुनते हैं और आधा 1 घंटा के बाद वो डिलीट होना शुरू होता है, तो मैं मेरा अपना सीक्रेट बताता हूँ। मैं जब भी किसी अच्छे इंसान को सुनता हूँ, तो इससे ये नहीं बोल रहा कि मैं अच्छा इंसान हूँ, कोई अच्छी बातें सुनता हूँ। अगर आपको मेरे बातों में कुछ अच्छा ही लग रहा है तो उतारिए, कॉपी में लिखिए, ताकि ये आपको जगा के रखेगा, ताकि आपको लक्ष्य तक जाने का मौका देगा। जहां पे भी इन चारों में से कुछ चीज गड़बड़ हो रहा है, वापस फिर से आपको ले आएगा कि नहीं, सर ने एक दिन कहा था 4 Ds द बेस ऑफ मेकिंग द इंटरेस्ट इनटू गोल। सो यू प्लीज कीप दिस विथ यू, नोट इट ऑन योर डायरी, आपको बहुत काम आएगा। एवरी स्टेप यू विल हैव दैट बर्निंग एटीट्यूड विद इन यू दैट यस आई वांट टू डू इट। वो जो इग्नाइटेड माइंड बोलते हैं या इग्नाइटेड विश, वो रहेगा आपका। देन द 4th D इज डिसिप्लिन। अनुशासन शायद सर, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि कोई चीज आ गए समय पे आ गए। पंक्चुअलिटी को बहुत लोग गलतफहमी से डिसिप्लिन सोचते हैं कि आप समय पे समयबद्ध रहते हो तो सोचते मैं अनुशासन वाला। ऐसा नहीं होता है। क्लास में तो हर दिन आते हैं, हर कोई आता है 7:30 बजे, 1:30 बजे सब जाता है। दे आर वेरी डिसिप्लिन टुवर्ड्स द स्कूल टाइम, बट व्हाट इज अबाउट द डिसिप्लिन टुवर्ड्स देयर ड्यूटी, टुवर्ड्स देयर रोल, टुवर्ड्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्थ का डिसिप्लिन होता है, माइंड का डिसिप्लिन होता है, सोशल डिसिप्लिन होता है, नेशनल डिसिप्लिन होता है, एक अनुशासन होता है। डिसिप्लिन का बेसिक अगर मुझसे कोई पूछता है डिसिप्लिन, मैं बोलता हूँ इट इज नॉट दैट व्हाट इज द वर्क यू आर डूइंग, यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू।
उसको क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी, प्राथमिकता आपको निर्णय करना है। अभी मैं एक टीचर हूँ, मेरा प्राथमिकता क्या है? यस, टू डिलीवर द बेस्ट टीचिंग टू द स्टूडेंट। इफ आई एम डूइंग इट, आई एम ए डिसिप्लिन मैन। बट मैं आ जाऊंगा 7:30 बजे, आके तुम लोग से खाली हवा में बात करते रहूंगा या टाइम पास करते रहूंगा। आई एम नॉट, आई एम रेस्पेक्टिंग द टाइम। इतना से 9, 9:30 बजे क्लास स्टार्ट करूंगा, 9:10 में छोड़ दूंगा। तो आप सोच सकते हो कि सर रेस्पेक्टिंग ओनली टाइम, बट ही इज नॉट डिसिप्लिन टुवर्ड्स हिज ड्यूटी। So now you people are students. What is the discipline for you? To accept the knowledge and accept the learning from the outside world. Maybe it is experiential learning, maybe it is academic learning, maybe it is a personal learning in the day-to-day activity. But you need to prioritize कि मेरा इस समय प्राथमिकता क्या है। जैसा कोई हम पढ़ रहे हैं, अचानक एक फोन आया, फोन आने से मैं देखा कि ये संजय सर का है, तो मुझे लगा बाद में भी मैं इसको अटेंड कर सकता हूँ, तो मैं उसको वहां पे काट दिया या साइलेंट कर दिया, ये करके फिर मैं अपना पढ़ाई किया। तो दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन, बिकॉज प्रायोरिटी डिसाइड करने का अनुशासन मेरे अंदर है। अनुशासन का मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन गिवन प्रायोरिटी। क्या तुम्हारे लिए मुख्य है अभी? और अभी एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, तुमको भी तुम्हारा क्लियरिटी है क्या है तुम्हारा डिसिप्लिन? मुझे भी। मैं अगर वहां पे उनका फोन उठाकर 10 मिनट बात करता, इट शोज दैट आई एम इनडिसिप्लिन टुवर्ड्स माय ड्यूटी। फिर तो मैं कॉल बैक कर सकता हूँ। जैसा भी एक IIC जोड़ा का फोन आया था, उनको मैं बोला सर मैं मीटिंग में हूँ, सो व्हाट इज आई एम शोइंग डिसिप्लिन टुवर्ड्स माय सेशन। हो सकता था एक्सक्यूज मी स्टूडेंट बोल के उनसे 10 मिनट बात करके आता। तुम लोग को क्या लगता सर ऑन कर दिए, बुला दिए और अपना, हालांकि वो भी इम्पोर्टेंट है, स्टेट अपना उड़ीसा जोड़ा के थाना का हेड है, कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा इसलिए नहीं फोन किया। लेकिन फॉर मी द मोर इन्वॉल्वमेंट और इम्पोर्टेंट फॉर मी, सो आई हैव पिक्ड दैट कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग के पास भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको चुनने का अगर आइडिया आ गया कि मेरे लिए अभी मुख्य क्या है, तो आप डिसिप्लिन बच्चे हो। आप देखोगे क्लास में बहुत सारे बच्चे शांत सुशील होकर बैठे रहता है एक कोना में, ना किसी को छेड़ता है ना किसी को परेशान करता है, टाइम पे आता है। तो क्या हम उसको सक्सेसफुल पर्सन बोलेंगे या सही जा रहा बोलेंगे लक्ष्य की ओर? मैं एग्जाम्पल लेना नहीं चाहूंगा, मेरे दिमाग में 2-4 बच्चे हैं, लेकिन उनको बुरा लगेगा या फिर आप लोगों को भी लगेगा। लेकिन आप आराम से एनालिसिस कर सकते हो कि आपके क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे भी हैं, they are very disciplined towards their behavior but not disciplined towards their academic. So this is the difference. So you need to prioritize, you need to find out what is important for you now. तो उसको बोलते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन। समझ में आ गया होगा? तो ये 4 चीज को आपको हमेशा अपने साथ रखना है, ठीक है। जो बच्चा अगर इन चारों चीज को हमेशा याद दिमाग में रखता है, उसको इच्छाओं को लक्ष्य में बदलने में कोई मुसीबत, कोई तकलीफ नहीं। हर इच्छा उसका लक्ष्य बन के निकल जाएगा और वो सफल होकर उससे निकल जाएगा। In this way, he will not get only success in the outer world, at the very same time satisfaction in within also he will get. क्योंकि सफल तो बहुत है लोग, लेकिन अगर अंदर से संतुष्ट नहीं हो, वो सफलता आपके लिए कोई काम का नहीं। आप देखिए उस सुशांत सिंह राजपूत को, वो हम सबसे बहुत ज्यादा सफल था। सबसे ज्यादा अगर बोला जाए तो जितने बॉलीवुड में स्ट्रगलिंग स्टार है उनके मुकाबले बहुत ज्यादा सफल था, लेकिन अंदर से खोखला था, अंदर से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं था। तो यू हैव टू मैनेज द हेड एंड हार्ट। कुछ ऐसा काम करो जो अंदर तकलीफ ना हो, कुछ ऐसा काम करो जिससे अंदर ग्लानि ना हो, तुम्हारा पीस, तुम्हारा जॉय, तुम्हारा हैप्पीनेस जो भी है, ठीक है। जैसे मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाओ, आत्मनिर्भर भारत। मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ आत्मनिर्भर व्यक्ति बनो, क्योंकि अभी तक आप लोग आत्मनिर्भर व्यक्ति नहीं हो, अब क्या भारत बनाओगे? अभी भी हम बाहर के दुनिया पर निर्भर हैं, अपने खुशी के लिए, अपने शांति के लिए, अपना मान सम्मान के लिए। वो टोटली डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड, वी आर नॉट सेल्फ रिलायंट। हम खुद आत्मनिर्भर व्यक्ति नहीं। थोड़ा सा कोई कुछ बोल देता हम हिल जाते हैं अंदर। हाँ, व्हाट्सएप में कुछ गलत हो जाता है, कोई लिख देता रिमार्क, हम अंदर से हिल जाते हैं। तो हम खुद आत्मनिर्भर खुद नहीं है, व्यक्ति नहीं है, तो हम आत्मनिर्भर भारत क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले तो आत्मनिर्भर व्यक्ति बनो, इंसान बनो, ताकि ठीक है बाहर में हम बहुत सारे डिपेंडेंट,
पढ़ाई के लिए हो या खाने के लिए हो, मम्मी पापा सब पर निर्भर है। ये निर्भरता कुछ पल के लिए है, बाद में धीरे धीरे हमको ये शक्ति दे रहा है कि हम खुद अपने आप में ऐसे आत्मनिर्भर बन जाए कि हम दूसरे को कुछ मदद कर पाए, जो कि हम भी बचपन में आत्मनिर्भर नहीं थे, अब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इनर क्वालिटीज पर स्टिल वी आर डिपेंडिंग ऑन द आउटर वर्ल्ड। To the friends, if friends gives any wrong comment, we are in a depression, we are in emotional turmoil, we are losing our joy, we are losing our peace. So where we are self-reliant? Ask this question. आत्मनिर्भर भारत तो नहीं बेटा, बच्चे मेरा पहला काम है आत्मनिर्भर व्यक्ति बनो। एक बार आत्मनिर्भर, यू विल बी अनटच विद द वर्ल्ड। कोई कुछ भी बोले साई शिवा को, साई शिवा का सेल्फ एस्टीम ऐसा होना चाहिए कि वो अडिग रहे। अगर गलती किया हाथ जोड़कर उससे माफी मांगेगा, गलती नहीं किया दुनिया कुछ भी बोले अंदर से मैं हिलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम सच के रास्ते पे हो, मैं हमेशा बच्चों को भी सबको बोलता हूँ, सच का रास्ता में क्या है, थोड़ा सच परेशान हो सकता है लेकिन सच कभी पराजित नहीं होता। तो इसको कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रूथ इज दैट पावर। तो बी ट्रूथफुल एंड बाहर की दुनिया से लो, साधन को लो, they are resources to get the growth, but don't 100% depend your inner qualities on the outer world. Don't allow them to control your emotions, control your inner quality. कोई कुछ बोल दिया तुम गुस्सा हो गया, क्या आत्मनिर्भर? वो तो तुमको जानबूझ के छेड़ा है। अरे तू बदमाश बोल दिया, तू दो ठोक दिया, तो आत्मनिर्भर कहाँ है? आत्मनिर्भर मतलब you have a full charge on yourself. You are not depending on your outside for your inner joy, inner peace, or inner happiness, or your inner what do you say, all other qualities. Love, प्यार के लिए भी इतना भरा हुआ है तुम्हारे अंदर प्यार, इतना दिव्य इंसान, फिर भी कटोरा लेके हम बाहर मांग रहे हैं। अरे वो मुझे नहीं चाहता, वो मुझे नहीं चाहता, वो बदमाश है, वो ठीक नहीं है। क्यों? Why you are asking? You are the ocean of love. Spread the love. Why you are begging for the love? कोई तुमको प्यार करे ना करे इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, खाली इतना है कि उसका बदकिस्मती है तुम्हारा प्यार नहीं मिला उसको, ये सोच के आगे बढ़ जाओ। नहीं वो मुझे प्यार से बात नहीं किया या मुझे बर्थडे में नहीं बुलाया, यानी कि मुझे प्यार नहीं। Why you are declaring this? तो मेरे my dear students, if you want to be you want to make a self-reliant India, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हो, तो पहले आत्मनिर्भर व्यक्ति बन जाओ। किसी और पर निर्भर मत करो, अपने अंदरूनी खुशी हो या गुणों को एनालिसिस करो। जो ज्यादातर बच्चे आजकल अपने आप को खो दिए हैं, दैट पावर दे हैव गिवन टू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक एंड ऑल सोशल मीडिया दे हैव गिवन, एंड फ्रॉम देयर दे आर इवैल्यूएटिंग देमसेल्फ कि व्हाट आई एम इन दिस। नो, नॉट द टॉप। आई हैव टोल्ड यू, यू आर इन द टॉप 1%। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? दुनिया का श्रेष्ठ 1% में तुम आते हो, फिर भी कटोरा लेके मांगते हो अप्रूवल। तो ये जो तुम्हारा ये है लक्ष्य है, ये लक्ष्य पाने के लिए सबसे आसान तरीका है। अब तुम यहाँ पे जस्ट अब 1-2 मिनट में क्लोज करने के लिए कि अब तुम सोचते हो कि सर कैसे करें, करना क्या है, कोई घटना आता है, ये सब तो मेरे दिमाग में आ गया। इसके लिए 3 चीज याद रखना। एक है, कोई भी चीज आता है सामने जीवन में तुम्हारा, पहले सोचो। सोचने के बाद अगर कुछ कंफ्यूजन आता है तो पूछो, चाहे मम्मी पापा से, चाहे टीचर से, चाहे तुम्हारे जो दोस्त जिसको थोड़ा सा तुमसे ज्यादा अनुभव। देखो इस सब मामले में हम तुम लोग से ज्यादा इंटेलिजेंट है नहीं, लेकिन तुमसे अनुभवी ज्यादा है। हम टीचर लोग तुम लोगों से एक ही जगह में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाते हैं, वो है वी आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ रियल लाइफ, यू डोंट है। Otherwise, maybe in the intelligence level, maybe your academic level, you may be better than us. But still, since you are a student, you are learning. But in few play, I am very openly accepting it. कुछ चीजों में जैसा IT का, कंप्यूटर का, I have 10% knowledge, you have 80%, 90% knowledge. Sometimes I'm asking, so it doesn't mean that you are having edge. You are in a still learning process. तो अनुभव का कहीं ना कहीं हम लोगों के पास, मम्मी पापा के पास, दुनिया के पास हो सकता है उस। तो सबसे पहले आप कोई सिचुएशन आता है तो थिंक, देन आस्क, देन थिंक। तो जब थिंक का बात आता है, सोचने का, मैं उदाहरण दूंगा या मैं हमेशा देखता हूँ, गणेश जी से लेता हूँ प्रेरणा। जब गणेश जी के पास ये ऑप्शन आया था
कि तुम सृष्टि का एक चक्र लगा के आओ। कार्तिकेय जी को जब पार्वती माँ बोलती है कि दुनिया में श्रेष्ठ या दुनिया का एक चक्कर लगा के आओ, तो गणेश जी सोचे और कार्तिकेय बगैर सोचे गाड़ी लिए अपने वाहन मयूर भगाए वर्ल्ड को घूमने। और गणेश जी क्या किए, कोई बता सकता है? सर अपना मम्मी मम्मी पापा पापा का का चक्कर लगाया। अराउंड मार लिया। मम्मी पापा के चारों ओर घूम के पूरा ब्रह्मांड को कवर कर, इसको बोलते हैं सोचना। अब जब बारी आता है आस, पूछना, पूछना मैं लेता हूँ प्रेरणा अर्जुन से। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में परेशान हो गया कि सब तो मेरे गुरु, मेरे बड़े पापा, मेरे भाई सब सामने है, क्या तीर उठाऊंगा मैं, कितना बड़ा धनुर्धर होके भी क्या करूं अपने परिवारजनों को मार के, कैसे करूं? तो उसका सोच खत्म, परेशान कई देर तक सोचे, लास्ट में देखा उससे नहीं आ रहा समाधान, तो वो पूछा। तो किससे पूछा? कृष्ण भगवान से। किससे? कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान से। वेरी गुड। कौन बोल रहा है? स्नेहा पंडित। नेहा पंडित। सर वाकई स्नेहा। पंडित है रे। हाँ तू पंडित है, पंडित है, वेरी गुड। चलो पूछो। कृष्ण ने 18 अध्याय में पूरा बताया, 16 अध्याय, एक अध्याय अर्जुन का सुना, पहला चैप्टर पूरा अर्जुन को सुना। इसी को हम लोग बोलते हैं कनेक्ट, कन्वे एंड कन्वेंस। पहले आप किसी से कनेक्ट होंगे तभी जाके कन्वे और कन्वेंस इजी होता है। तो पहले कृष्ण अर्जुन से कनेक्ट हुआ, वो बोला बेटा पूछो जो जो कुछ, वो बताया ये कैसा, वो कैसा, इनको मार के क्या, वो फिर कृष्ण 16 अध्याय लगाया, टाइम बताया कि कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, आगे तुम्हारा क्या रोल है। तो उसके बाद वो समझ गया, अब वो अपना तीर निकालकर युद्ध के लिए तैयार। तो आपको भी कभी सोचने से समाधान नहीं मिला, गणेश जैसा अगर मिला नहीं तुरंत पूछिए, पूछने के बाद क्लियर हो गया, करिए। डू, करने का मतलब होता है कुछ करना, मतलब जब दोनों जान गए अब करना है। मैं करने का प्रेरणा लेता हूँ हनुमान से। जब हनुमान को बताया गया कि संजीवनी बूटी फलाना जगह में है, ये है, वो सुन लिया, सोच लिया, पूछ लिया कहाँ है, उसके बाद और वो देखा नहीं करना क्या, गया। वो कितना बड़ा भी काम क्यों ना हो उसको खत्म करके लाया। वो वहां जाके कंप्लेन नहीं किया कि सर आप तो बोले थे संजीवनी बूटी पे, ये तो पहाड़ पूरा दिख रहा है। और लेकिन पहाड़ जैसा, उसका मीनिंग यही है कि पहाड़ जैसा कठिनाई आएगा, तुम रुकना मत, करते जाना। एक बार करने निकल गया, भागना मत वहां से कायरों की तरह, डरना मत, भागना मत, सामना करना। पहाड़ जैसा समस्या भी जो है एक सरसों की तरह हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जो हनुमान का एग्जाम्पल है उठा के ले आता है। तो सोचो, सोचने का बारी जब आए गणेश जी को याद करना, पूछने का बारी आए तो अर्जुन जी को याद करना, और जब करने का बारी है तो हनुमान की तरह एक बार डिसीजन ले लिया करना है, देयर इज नो टर्न बैक, पीछे मुड़ना ही नहीं। देन यू आर गोइंग टू अचीव इट। And the biggest also, the hurdle will become small if you keep on going with the destination and your aim. अभी तुमको बहुत बड़ा दिखता होगा कोर्स, लेकिन पूछ लिया, सोचा पढ़ना है, दिमाग में लाया, पूछा टीचर लोग से, डाउट क्लियर हो गया, करना है। अब क्या करना है? पढ़ना, दिन रात लगा देना है, क्योंकि जहाँ डाउट आएगा फिर टीचर है, सोचने का बारी आया तुम्हारे अंदर है। तो ये करने के बाद जब डू है, डू विल बी वेरी इजी व्हेन यू दिस टू थिंग्स विल बी, एंड हनुमान की तरह शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी, और तुम्हारे लिए पहाड़ भी जो है छोटा सा पौधा लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल यही है कि पहले तो अपना लक्ष्य, इच्छाओं को लक्ष्य में बदलो, लक्ष्य बदलते साथ इनको पकड़ो। देखो अगेन आई विल मीट इन द फ्यूचर डेज, एक दो कभी होगा 2-3 महीना में, अगर तुम सबको इच्छा होगा, विद अनदर टॉपिक कि हाउ टू विन द वर्ल्ड, दुनिया को कैसे जीते। आज मैं खाली बताया तुम्हारा इच्छा को लक्ष्य कैसे करना है। होप यू ऑल हैव गॉट समथिंग फ्रॉम दिस सेशन, कि जो 1 घंटा तो मैंने मेरे साथ बिताया व्यर्थ ना हो। कोशिश किया, मैं सफल कितना हुआ वो तुम लोग बताओगे आने वाले समय में। अभी नाउ फॉर 2 to 5 minutes द सेशन इज ओपन फॉर ऑल। Anyone having any doubt related to this topic or anything related to your life, you can put question on session, because खाली मैं ही बोलते रहूंगा, तुम लोग सुनते रहोगे, अच्छा नहीं है। अगर कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि सर मुझे ये कठिनाइयाँ हो रहा है लक्ष्य में बदलने में, या ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, प्लीज फील फ्री टू टॉक इन फ्रंट ऑफ आवर्स, बिकॉज ऑल आर योर फ्रेंड्स एंड वी ऑल आर इन योर जर्नी।
और कोई भी जर्नी डेडलाइन के साथ नहीं रहता है, कोई डेस्टिनी के साथ नहीं होता है। यात्रा में पड़ाव आ सकते हैं, लेकिन हर पड़ाव में तुमको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखेगा, क्योंकि डेड एंड नहीं होता, कोई भी रास्ता का डेड एंड नहीं होता। चलो, ओपन टू ऑल, एनीवन रेज हैंड? क्या पूछा? रेज हैंड। नक्षत्र, यू रेज योर हैंड? यस, you can ask. Sir, sometimes we feel that things are not working properly, and we get little slowed down in what we are doing, sir. So how can we again start with the same energy? See, few things are in our control. If it is something which is in your control, you try again. If something which is not in your control, you need to have patience, because that is the very big problem of this generation. They don't have the time to accept that it takes some time. Suppose today I have lived on seed, so plantation, immediately tomorrow or 1 month after that, if I expect the fruit, it is not possible. That is not in my hand. What is in my hand? To nurture the plant, to properly water the plant, give all the environment which will help the plant to grow inside as well as outside. So these work, it is in your control. You cannot expect all the time. Expectation sometimes kills your spirit. You have expected something, it has not. That time खाली तुमको एक ही चीज जांचना है, इसमें मैं कितने जिम्मेदार हूँ और कितना जिम्मेदार परिस्थितियां हैं। क्योंकि बहुत जगह जैसा तुम अभी एनएसपीएससी का, एमपीएससी का कोचिंग ले रहे हो, तुम लोग 5-6 जन ले रहे हो, पूरा मेहनत कर रहे हो, कभी नहीं हो रहा है। यहाँ तुम्हारे पास साधन अगर है तो तुमसे उसको जहाँ जहाँ कमी हुआ उसको नहीं है तो फिर ऑनलाइन में देखोगे, लेकिन तुम कोसोगे नहीं कि मेरा परफॉर्मेंस कम हो रहा है। और अपने आप को कीप मोटिवेटिंग करने के लिए ब्लेम गेम से बचना है, एक्सक्यूज से बचना है। 3 चीज कभी मत करना, तुमको कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि अभी तुम थोड़ा सा दुखी होते हो, जरूर कहीं ना कहीं तुम चले जाते हो दोषारोपण, किसी पे ब्लेम करते हो कि इनके वजह से नहीं हुआ, वो टीचर के वजह से नहीं हुआ या लेक्चर के वजह से नहीं हुआ। वो भी तुम्हारा एनर्जी को डाउन करता है, क्योंकि यू आर नॉट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू, यू आर अगेन पुटिंग समवन विल चेंज, देन इट विल हेल्प यू। डोंट पुट दैट। एक्सक्यूजेस मत देना, ये तो रात हो गया, ये तो सुबह हो गया, ठंड का दिन आ गया, गर्मी का दिन आ गया, बहुत सारे बहानेबाजी भी बहुत जन करके अपने आप को सोचते मैं सही हूँ, और ये सब जो है बहाना। अब तुम जानते हो अरे मैं आना चाहता था लेकिन गाड़ी पंचर हुई, छोटा छोटा बहाना। ये दोषारोपण, बहाना, एक्सक्यूजेस देना, ब्लेम गेम करना, ये 2 चीज हट जाएगा। दूसरा, जैसा कि तुमको पता चल गया नहीं हुआ वो चीज, फिर करना, कुछ अच्छा करना। तो ये चीज को अगर अपने आचरण में लाओगे, अपने व्यवहार में, बिहेवियर में लाओगे, ये 3 चीज, मतलब डोंट गिव यू एक्सक्यूजेस, डोंट ब्लेम एनीवन एंड डू समथिंग गुड। बहाना नहीं बनाना और दोष नहीं लगाना, ये 2 चीज कभी मत करना, और कुछ अच्छा करने का कोशिश करना। तब तुम्हारे अंदर क्या होगा, सेल्फ मोटिवेटेड फिर से होगा। शायद क्या होता है, तुम जो लो एनर्जी फील किए हो या तुम्हारा जो घट गया पहले से बोलो, जरूर तुम किसी ना किसी को ज्यादा एनर्जी दे दिया। यू हैव रेडिएटेड दैट पर्टिकुलर एनर्जी, क्योंकि जहां एनर्जी फ्लो करता है वहां थिंग्स ग्रो करता है। अगर मैं बोलूंगा संजय सर की वजह से ये मेरा नहीं हुआ, तो वो ग्रो करेगा। मैंने वो जो थॉट है कि उन्हीं की वजह से नहीं हुआ, उन्हीं की वजह, तो वो ग्रो करेगी, क्योंकि वहीं पे अपना थॉट डालता, और थॉट इज एनर्जी। लेकिन अगर मैं वो काट दूंगा, नहीं वो अपना काम के जो वाले मुझे तो करना है, तो डू समथिंग में आना पड़ेगा, ना कि ये 2 चीज को करना। देन ऑटोमेटिकली यू विल रीगेन योर मोमेंटम, इग्नाइट योरसेल्फ। क्योंकि अब किसके ऊपर तुम छोड़ रहे हो, अपने ऊपर ही छोड़ रहे हो, तो खुद को उठना है। ट्राई अगेन टिल यू गेट द सक्सेस। वही चीज जो मंत्र है लास्ट में। एनीथिंग एल्स, एनीवन? आई थिंक, आई होप यू हैव, आई एम एबल टू, आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। कोई और? अदरवाइज वी कैन एंड। किसी को है, चाहे टीचर तरफ से, चाहे बच्चों की तरफ से, कुछ भी अगर आप लोग को लगता है पूछना है तो। सेशन में मनस्मिता है? Yes, sir. So you got the thing clear? How to make interest towards convert into? Yes, sir. Yes, sir. It's clear. Yes, sir.
Okay, okay. Sir, Then anything else you want to? Yes, Dhruv. sir, this is Om Behra. Yes, Om. Sir, I want to ask that, sir, any decisions we are taking in for future, sir, how we can assure ourselves that it is right or wrong? See, How we can now know? you are student. Now you are student, so it is not always possible that every decision will be right or wrong. But better you should go take decision and make it right. मेरा हिसाब से जैसा मेरे को डिसीजन कल मेरे को जाना है काम करना, ठीक है, वहां पे फिर अगर मैं बीच में दुविधा के साथ जाऊंगा कि राइट होगा कि रॉन्ग होगा, जो कि रतन टाटा भी हमेशा बोलता है कि आई डोंट मेक डिसीजन, आई टेक एक्शन एंड मेक दैट एक्शन दैट राइट इट इज ए राइट डिसीजन। तो हमको पूरा एनर्जी किस पे लगाना है, जो अगर तुम जो डिसीजन लिया, अगर डाउट आया, डाउट आने से तो मैं तुमको पूछा हूँ, पहले तुम डिसीजन किससे लिया, थिंक से, सोचा होगा कुछ, तो थिंक से अगर तुम्हारा को लग रहा है कि इनर गट फीलिंग आ रहा है कि यू आर राइट, अंदर से एक फीलिंग आता है कि तुम सही जा रहे हो, जैसा मैं डिसीजन लिया साइंस लूंगा 10th के बाद, ठीक है, तो मेरा गट फीलिंग अंदर से आ रहा है कि साइंस मेरा अच्छा होगा, थिंक कर लिया। उसके बाद कोई अगर साइंस में सफल व्यक्ति है या फिर कुछ है, उनसे एक बार अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट 1% भी है, पूछो, जो जिस पर मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे को गलत सलाह नहीं देगा, चाहे वो टीचर हो या पेरेंट्स हो या तुम्हारा बड़ा भाई हो, आस्क किया, वो बोला नहीं नहीं तुम साइंस में तो अच्छा करोगे क्योंकि तुम्हारा इच्छा भी है, लेकिन थोड़ा सा ये तुमको मेहनत करना, उसके बाद दूर करना। लेकिन अगर तुमको यहाँ डिसीजन में डाउट बहुत आ रहा है तो तुम आस्क कर पूछ सकते हो। पूछना भी किसको, कृष्ण, तुम ये नहीं बोल सकते सर उसको तो अर्जुन को तो कृष्ण मिल गया, अच्छा से समझा, मेरे को कहाँ से कृष्ण मिलेगा, तो मैं यही बोलूंगा, तो उसको अगर कृष्ण, तुमको कृष्ण नहीं मिलेगा, फिर तुमको खुद को करना कि क्या तुम अर्जुन हो, तुम अर्जुन होगा तो कृष्ण मिलेगा। Yes, उसी ये वाला, मैं भी अर्जुन नहीं हूँ कि मुझे कृष्ण आके दिखाएगा बताएगा कि दुनिया क्या है, मैं नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे भी अर्जुन बनना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह तुम भी सही गुरु के पास तब जाएगा तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आएगा कि नहीं मैं ये कर रहा था या रुक गया हूँ, तो 100 कृष्ण आएंगे तुम्हारे रास्ते, हजारों कृष्ण आएंगे, क्योंकि तुम्हारा निष्ठा बहुत, मैंने समर्पण बहुत है, तो कृष्ण अपने आप उतर के आएंगे। लेकिन अभी तो तुम कल्पना नहीं करना कि कृष्ण दिन आके तुमको कुछ बताएंगे, ठीक है। तो डोंट हैव ए सेकी डिसीजन व्हेनेवर यू हैव, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, इतने बड़े हो कि हम भी कभी कभी गलत डिसीजन हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको राइट करने के लिए हम पूरा कोशिश करते हैं, पता चल जाता है कि डिसीजन है तो करेक्शन तो हो सकता है। कोई भी चीज वर्ल्ड में परफेक्ट नहीं, परफेक्ट बनाया जाता है, रिलेशन हो, लाइफ हो, हेल्थ हो, हर चीज तुम छोड़ दोगे तो परफेक्ट नहीं रहेगा। भगवान जन्म देता है उसके बाद बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, इसीलिए डोंट वरी अबाउट द डिसीजन, नाउ यू वर्क ऑन योर एम एंड गोल, एंड इफ देयर इज एनी डाउट आफ्टर थिंकिंग, आस्क सम गुड पीपल हु यू थिंक दैट दे आर लाइक कृष्ण फॉर यू, वो लोग तुम्हारा साथ देंगे धर्म और कर्म। एनीवन Sir, I एल्स? want to ask something. यस बेटा। Sir, how we can make perfect ourselves in each and every field, sir? Because today, nowadays, everyone is in a competition to make themselves perfect in each and every field. So how we can achieve that, do that? See, perfect is a very expanded definition, because for you, suppose 7:30 में आना मेरे लिए परफेक्ट है, 7:25 में आना किसी के लिए परफेक्ट है, वो सकता है साइड से 5 मिनट लेट क्यों आना। तो perfection you cannot think with the other side, you have to think from your side, क्योंकि कोई लड़का 99 लिया तो वो परफेक्ट है, ये भी गलत सोच है, क्योंकि if he is not having a good behavior, good other skills like communication skill, expressions और confidence और anything, खाली वो rote learning करके रट्टा तोता मान लिया या बुक वार्म करके हो गया, बट जब रियल वर्ल्ड के साथ वो सामना किया, ये मे बी ए ग्रेट और होता भी है। मैं देखा हूँ अपने 25 साल के टीचर्स लाइफ में कि मेनी टाइम्स हैपेंस दैट हु आर 95 94 दे आर द ग्रेट फेलियर लेटर ऑन, एकेडमिकली ग्रोथ कर गए, लेकिन हॉरिजॉन्टली जो ग्रोथ करना था, वर्टिकल ग्रोथ काफी नहीं, जड़ों को भी मजबूत करना रहता है। मैं तो पता चला एक छोटा बड़ा झटका, अब सुशांत सिंह राजपूत ही इज पास आउट फ्रॉम हंसराज एंड AIEEE में उसका रैंक 50 कितना था, टॉप 10 में था वो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस,
NITC की कहाँ से, highly educated person. Then how can he abuse his life? Do you think he is perfect? In spite of having all the academic, all success, and a great artist, actor, perfection you cannot be defined through the world's. Yes, as a person, you need to groom yourself, your all the outer qualities like your communication, your expression, your pleasing, keeping your face smile on your face. All these are personality grooming. Academic only information है, लेकिन जब तक वो इंफॉर्मेशन को अपने एक्शन में नहीं लाओगे विजडम नहीं। आज तो वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, तुम्हारे पास अगर मास के बारे में बोलने का 10 पॉइंट है तो मैं क्या तुमको, लोग सोचते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि मंगल के बारे में बोल, लेकिन उसको पूछो कि जोड़ा का बाछू हटिंग में क्या हुआ, अगर उसको नहीं मालूम हटिंग क्या होता है तो फिर वो कंप्लीट फेल्योर है। तो इट इज, यू नीड टू कीप योर एक्सपांशन हॉरिजेंटली एज वेल एज द वर्टिकल। और तुम जो बोल रही हो क्या बोली सेकंड पॉइंट, मुझे perfect So because nowadays everyone is in a competition to make themselves perfect, so they are in a competition with comparing with others. They need to be in competition with themselves. The competition with the word is given to motivate yourself, motivate within you. The self motivation के लिए दिया जाता है कि कल अगर मैं 10 तक का टेबल पढ़ा हूँ तो आज मैं अगर 15 तक पढ़ रहा हूँ तो I am growing. This is the real competition. कि कल 10 तक का टेबल आता था, आज 11 का आया। I win over my own weakness या I win over my own with my own previous achievement. So that is. But once you go with the competition with the outer world, always there is a setback or there is a some success. सक्सेस हो जाने से तुमको लगता है मेरे पीछे 99 लोग आ गए, मेरे पीछे इतने हो गए, मैं टॉप में आ गया। दिस इज नॉट ए रियल सक्सेस, इट इज ए सिकनेस, ये एक बीमारी है। हमेशा तुमको लगेगा दूसरे से आगे, मतलब दूसरे से आगे नहीं होता, तुमको लगता है दूसरे से आगे, मगर तुम खुश हो रहे हो पीछे तुम्हारे कितने, मेरे पीछे इतने, तो वो तो बीमारी है। दूसरों को पीछे करके क्या, व्हेन द सराउंडिंग इज हैप्पी दैट इज द रियल सक्सेस। सराउंडिंग हैप्पी मतलब सपोज तुम दिन रात पढ़ रहे हो, मम्मी बोली बेटा इसको थोड़ा सा चूल्हा में गर्म कर दो, तो मम्मी को डांट दो, क्या है एकेडमिक, क्या फायदा उस एकेडमिक का 99 ला के, उससे अच्छा तो 90 भी ला दो। लेकिन तुम्हारा सराउंडिंग में मम्मी दुखी है या तुम्हारे टीचर दुखी है या पेरेंट्स दुखी है, तुम उनको डांट दो, तुमको काम दाम नहीं है, जब तुमको पढ़ते समय चाय बना दो या दूध गर्म कर दो, दिस इज नॉट अ रियल सक्सेस। सो डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिकॉज दे विल मेक यू मशीन। ट्राई टू बी मेक ए मानव, एक इंसान बनो। सफल बनने के लिए वही जरूरी है। मोदी जी बहुत बड़े बड़े चीज को पढ़ाई करा नहीं, हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन सफल बनने के लिए बाकी चीजों को पाया। सबसे बड़ा ताकत उनके पास था एक्सप्रेशन, लोगों के साथ कम्युनिकेशन, वो बहुत जल्दी अच्छी तरह से कर लेते हैं। इस बार मन की बात में बता रहे थे स्टोरी टेलिंग के बारे में कि कितना पावरफुल टूल है ये, जो कि मैं भी कोशिश करते रहता हूँ। तो कोई देखा होगा, मुझे नहीं लगता कोई देखा होगा ये जो 69 मन की बात, कोई देखा इस बार मन की बात? नहीं देखा। तो इसको क्या सक्सेसफुल एकेडमी में आप घुस गए हो, लेकिन कोई काम का चीज अगर दुनिया में हो रहा है, कौन देखा है? अभय नक्षत्र, वेरी गुड। तो महीने में एक बार वो भारतवासियों से बात करने के लिए आते हैं। क्या हमारे लिए आधा घंटा भी समय नहीं है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जिनको हमने चुन के देश का धरोहर सौंपा है या देश का जिम्मेदारी सौंपा है, उनके बारे में ना सुने कि बच्चों के लिए वो क्या बोल रहे हैं, बड़ों के लिए क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे लिए मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वहां रेस में लगने के बजाय, मैं एक टीचर हूँ, इतना मैं बहुत बोल्डली बोल रहा हूँ, कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग एकेडमिकली भी परफेक्ट बनो, वर्टिकल हाइट लो, साथ में हॉरिजेंटल का भी लेंथ मैंने ये करो, एक्सपांशन करो, जड़ों को पूरा ऐसा मजबूत करो कि कोई तूफान भी आ जाए तुम हिलोगे डुलोगे लेकिन गिरोगे नहीं। तो कई सुशांत सिंह राजपूत मिलेंगे, कोई फायदा नहीं। कहाँ पे वो फेल्योर था बोलो तो, कंप्लीट सक्सेसफुल पर्सन था, लेकिन हो दिया अपना, 2 पल में उसको लगा कि दुनिया बेकार है, मेरा जीवन बेकार है, करिए जो भी है। So my request to you all, keep your roots grounded and reach to the top. Don't leave this ground.
योर पेरेंट्स, योर टीचर, योर सोसाइटी, योर ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। आत्मनिर्भर भारत को बेचारे अकेले मोदी जी करेंगे, हम और तुम का आवर रोल इज नॉट देयर। आज मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, आत्मनिर्भर भारत की नहीं बात कर। आज अगर तुम 40-60 में से अगर 10 जन भी इसको दिल से ले लिया तो एक श्रेष्ठ भारत बनने में कोई नहीं रोक सकता। मुझे भी मेरा कोई गुरु मुझे छेड़ा होगा, मेरे अंदर का जमीर को ललकारा होगा कि कर क्या रहा है, खाली पढ़ लेने से होगा। दो बच्चे को पढ़ा के दिखा, कुछ बोला हो जिससे लगा आग अंदर में कि क्या स्वार्थी जिंदगी है, खाली खाया पिया सोया कपड़ा पहन लिया, क्या कर लिया। लेट्स गो टू द वर्ल्ड टू गिव बैक। आइए, मैं ऐसे मजाक नहीं करता, तुम लोग मुझे कई सालों से देख रहे हो, तो आई एनीथिंग रॉन्ग गोइंग यू कैन ऑलवेज फ्री टू टेल मी सर दिस इज रॉन्ग, इफ एनीथिंग गुड सो आई मस्ट गो। तो इसी के लिए जो भी है हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि चारों तरफ का हिस्सा, तुम जो बोल रहे हो ऑलराउंडर तो कोशिश करना चाहिए सभी में, लेकिन परफेक्ट का कोई डिफिनेशन जो है स्टैंडर्ड में। आमिर खान का जो रोल है एक्टिंग करता है वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, लेकिन कोई अन्नू कपूर या पंकज जो साधारण जो एनएसडी से आए हैं लेकिन कैरेक्टर को अगर जी लेते हैं तो दे आर परफेक्ट। खाली आमिर खान के टॉप में एक्शन करने वाला है, और भी बहुत जन है। इवन कंगना रनावत इज वेरी गुड आर्टिस्ट जो अपने कैरेक्टर को पूरे दिखते। तो परफेक्ट को कभी मत डिफाइन करना फ्रॉम द आउटसाइड वन, वो केवल तुमको सोचना है अपने अंदर कि मैं ग्रो कर रही हूँ, पहले से बेहतर हो रही हूँ। अगर तुम बेहतर हो रही हो यू आर गोइंग परफेक्ट सिंपली, नहीं तो दर्द में चले जाओ। कितना भीड़ में रेस में बैठे रहोगे, जिंदगी रेस नहीं, जिंदगी जर्नी, और साथ में जर्नी करने में और मजा। एनी अदर क्वेश्चन? Otherwise, because I think you are having another class, your teachers may be waiting. क्या है रे? शायद ज्योग्राफी या कुछ होगा। Geography. Okay then, thank you for being with me and hope and if you all are interested, अगले बार कभी बोलना, फिर मैं कुछ नए टॉपिक के साथ तुम लोग के पास आऊंगा, ताकि क्योंकि एकेडमिक के साथ साथ कुछ जीवन का अनुभव भी चाहिए। किसी को कुछ कहना है आज का टॉपिक के मैंने वाइंड अप करने के लिए? थैंक्स, छोड़ दो, कुछ और बोलना है? Sikha madam, yes, please. Sir, how can we keep ourselves to each and every condition? How can we keep ourselves equal? To keep ourselves motivated. No, sir. How can? Like, sir, मैं To say that how can we keep ourselves calm? Just like Yes. sometimes in bad conditions, calm, bad yes. situations, we feel yes. calm. For How that, can we keep ourselves for calm? that again, that is very much easy, madam. Only thing is we need to come out of the blame game and we need to full charge of that I have the choice to do. I have done this and this situation has come. So I am the sole responsible for this. हर जगह में चॉइस हमारे पास रहता है कुछ भी करने का, चाहे उसका परिणाम अलग अलग हो, लेकिन वी शुड रिस्पेक्ट आवर डिसीजन। अगर मैं यहाँ आके आधा घंटा बोलने का चॉइस लिया, अगर ये गलत भी जाता तो मैं ये नहीं बोलता कि बच्चे नहीं आए थे या टीचर नहीं आया था या नेटवर्क खराब था। मुझे लगना कि मैंने चूज किया था कि आज का आधा घंटा समय दूंगा बच्चों के साथ, तो वो चार्ज अगर मैं अपने पास ही रख लूंगा तो मेरा एनर्जी ड्रेन आउट नहीं तो मेरा एनर्जी ड्रेन आउट होगा 10 जन के ऊपर। तो जो भी घटनाएं होती है हमेशा जरूरी नहीं अच्छा, और जब तक फेलियर नहीं होगा, जब तक हवा नहीं आएगा, तूफान नहीं आएगा, जड़ों को गहराई तक जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो लाइफ में अगर हडल आता है, कठिनाई आता है या सेटबैक आता है या पेन आता है, दिस इज ए ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड टू ब्रिंग यू नियरेस्ट टू हिम। इस समय में तुम सबसे करीब, हम सब करीब जाते हैं भगवान के जब भी कर, तो इट इज ए अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो उस वक्त हमको सोचना चाहिए कि जरूर इसमें मेरा कहीं अहंकार बढ़ रहा था होगा, मेरा कहीं एरोगेंसी बढ़ रहा था होगा, जो ये सेटबैक से मुझे सिखा रहा है कि जड़ों के साथ रहो या धरती में रहो, ज्यादा उड़ो मत या ज्यादा अपने आप को हवा में मत रखो, आओ वापस, क्योंकि जब जब तुम जड़ों में लगे रहोगे कोई तूफान गिरा नहीं सकता। तो ये चीज बहुत जरूरी है। जब भी सेटबैक आता है टेक द सिल्वर लाइन, अपने आप काम हो जाएगा। आपको लगेगा जैसा आज मैं तो 10 जन से मिला हूँ, 2 जन या 1 जन मुझे बहुत बुरा बोला, तो अगर मैं उसको पेन में ले लूँ या काम नहीं रहूंगा, उस वक्त मैं एक ही चीज सोचता हूँ
मैं उस गलती को सुधारने का कोशिश करता हूँ, ना कि व्यक्ति को कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है इसी के लिए ऐसा है। अगर वो बोल रहा है उसमें कुछ गलती है मेरा, उसको सुधारने से आई विल बी काम। लेकिन अगर व्यक्ति पे जाऊंगा तो सालों लग जाएगा उसको माफ करने में भी, या उसके बाद अपना जो मधुर संबंध बनाने में। तो आगे आई होप आई एबल टू आंसर यू। Yes, sir. Yes, खुद sir. के ऊपर जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी फॉर दिस 1 आवर। आई मे भी किसी लोगों को बोर भी लगा होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन अच्छा लगा तो मैं यही निवेदन करूंगा कि इसे अपने दिल से रखें और इसको अपने डायरी में लिखें और अपने जीवन में इसको अमल करें, ताकि आप समृद्ध रहोगे, सुखी रहोगे, सफल रहोगे, तो सबसे ज्यादा खुश हम ही लोग होंगे। थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Join photography or whatever it is.